Welcome again in DW301 Basic Electronics. In this topic, we will study about the filters. So, filters, we have seen the application of filters in the power supply. In the power supply, after the rectifier block, there was a block in which we have used the filter. So, let us try to understand the basics of the filters. So, what is a filter? So, if we see the literal meaning of this filter, it means it is something that filters out something. So, or you can say we use filters to filter out the unwanted materials, and like in a water filter, we filter out all the impurities of the water, and pure water is passed through the filter. So just like this, in an electrical engineering, the filters are the network. Filters are the frequency selective networks. In electrical engineering, filters are the frequency selective networks. And I hope in the practical life you have seen many filters, like the water purifier, and there are different kinds of software filters right now we are using in form of various applications, and for the images, and for the processing, and there are some kind of software filters which are based on the algorithms, and there are filters in some other things like a cigarette. A cigarette have a filter. And people who used to smoke, I hope they are aware of this thing, that if a cigarette contains a filter, actually not all, few cigarette contains filters, and that are supposed to be superior quality cigarettes. I don't know about that thing, but yes, I have heard about it. There are some cigarettes in which there are filters. So filters are very common. There are, and those filters, and all the filters are supposed to filter out the unwanted elements. So basically, and this principle also applies here. So here we will confine ourselves to the electrical engineering filters only. So in electrical engineering, filters are the frequency selective network. So basically, if in any power supply, if there are many frequencies, and if we want to select some frequencies, then then we will design the filter in such a way that it will pass out that frequency which we want to select, and it will filter out all the other frequencies. So just like all the other mechanical filters or some other kinds of filters which are filtering out the undesired components or from anything, and here also the filters filter out the frequency components which are not desirable. Okay, so filters are the frequency selective networks. So here, if this is a filter, and we are applying some signal here. Let us suppose we are applying a signal here who's having various frequency components, many frequency components, and the filter has its own frequency response. The filter has its own frequency response, and according to its frequency response, it decides which frequency to pass and which frequency to attenuate. Okay, so this term, I hope you are aware of this term, attenuation and amplification. These are the two terms.
I will explain these terms in a minute. So, okay. So, if this is a input signal which contains many frequencies, and we can write this input Vi is like this. If it contains V naught, some frequency cos omega 1t, and some other frequency having different magnitude V1 cos omega 2t, plus some other frequency component cos omega 3t. And let us suppose let me draw with some different color in order to make you understand what is happening inside a filter. We will study the designing of filters in a minute. But before designing, first we need to understand what is a filter. And as I already defined, the filters are the frequency selective networks. So basically, if we are applying these kind of frequencies, and there's one more omega 3 is also there, which is a high frequency, and these all are superimposed on actually you can see here these all are added in this supply. So we have a power supply which contains lots of harmonics, and or you can say lots of frequencies, but we want to pass only this omega 1. We want to pass only this omega 1. So, and omega 1 is a smaller frequency, this first diagram. And this is a, I think, omega 3 frequency, and other frequency is omega 2. And the first one that I have drawn is the omega 1. So what really filters do, that it filters out this omega 2 and omega 3, and in the output you will get only this V naught. And if this is the frequency response of this filter, and then V naught cos omega 1t. So in output you will get a lower frequency, and definitely the amplitude of this frequency will be decided by the transfer function of this filter, or you can say the frequency response of the filter. But that is not our concern. But yes, the amplitude will decrease, and amplitude will be like this. So this is about the basics of the filter. So let me explain it again in a simple way. So basically, filters are the frequency selective network. So what are the filters? We have discussed about the normal filters, like water filter and software filter. So, but those are the filters that we use in our day-to-day life. And in electrical engineering, filters are the frequency selective networks. So the net and यानी कि filter क्या है? Basically जो कि अगर आपके पास कोई सप्लाई आ रही है और उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो डेफिनेटली उन कंपोनेंट्स को हमें फिल्टर आउट करना होता है। यानी कि जो कंपोनेंट हमें नहीं चाहिए, तो उस कंपोनेंट्स को हमें जो है एक फिल्टर के थ्रू निकालना होगा। जो कंपोनेंट हमें नहीं चाहिए, वो कंपोनेंट जो है फिल्टर जो है सप्रेस कर देगा। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये सप्लाई आ रही है आपकी कहाँ से? ये ओमेगा 1 मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यूज के हिसाब से लेते हैं। मान लीजिए ये ओमेगा 1 50 हर्ट्ज की है, और ये ओमेगा 2 आपकी 100 हर्ट्ज की है। 100 ज्यादा हो गया, मान लीजिए 60 की है, और ओमेगा 3 आपकी 70 80 हर्ट्ज की है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं। अब मान लीजिए ये सप्लाई आपकी VI, यानी कि ये जो आपकी पावर कंपनी है, यानी जो भी कंपनी आपको पावर प्रोवाइड कर रही है, जैसे आगरा में टोरेंट है, और बाकी यूपी में आपकी PCL प्रोवाइड करती है तो जो जहां से वो पावर जनरेट हो रही है, उसके बाद फिर वो पावर जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पावर में बहुत सारे हार्मोनिक्स होते हैं। वो पावर एकदम से ऐसी नहीं होती जिसे हम कह सकते हैं कि एकदम आपकी प्योर फॉर्म में नहीं होती। तो यहाँ पे हमें फिल्टर्स का यूज होता है, यानी कि जब हमारे पास सप्लाई आती है वहां से, तो वहां पे हमें फिल्टर्स का यूज करना होता है। यानी हम ये चाहते हैं कि हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी मिले? 50 हर्ट्ज। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में हम 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो बेसिकली वी वांट
that this 50 हर्ट्ज सप्लाई must be there। तो ये 50 हर्ट्ज की जो सप्लाई है इसके आने के लिए हमें क्या करना होगा, बाकी के जो कंपोनेंट है, हालांकि इनके मैग्नीट्यूड बहुत कम होते हैं V1 और V2, बट फिर भी अगर ये होंगे तो ये जो है इंटरफियर करेंगे हमारी वर्किंग से। बिकॉज अगर हम इस आगे जो सप्लाई आई है इसमें अगर 50 हर्ट्ज के अलावा और भी कंपोनेंट होंगे तो डेफिनेटली दे विल डू some kind of interference। The hum sound in transformer is because of these harmonics, जो आवाज आती है तो वो भी आप पढ़ोगे आगे चल के जब आप अपना इलेक्ट्रिकल में पढ़ोगे। तो और बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन पे भी इवन फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है कि पावर, सॉरी, जो पावर सप्लाई आपकी जनरली जो डिवाइसेस होती हैं जिनमें अगर हम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, आपकी वहां पे आपको वो ये मेंशन होता है कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए और उसमें कुछ टॉलरेंस होती है +-2 इस तरीके से। तो यानी कि रेंज निर्धारित है कि 48 से 52 के बीच में अगर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए डिवाइस की, तो उससे अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो हमें क्या चाहिए, फिल्टर आउटपुट चाहिए। तो इसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे, अगर मान लीजिए ये जो सप्लाई आ रही है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं 50, 60, 80, तो बेसिकली यहाँ पे हम एक फिल्टर यूज करेंगे। तो यहाँ पे किस तरीके का फिल्टर यूज करेंगे, जो कि हाई फ्रीक्वेंसीज को एटेन्यूएट करता होगा और लो फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। तो एटेन्यूएशन का मतलब होता है किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ का कम करना, स्ट्रेंथ को बिल्कुल जीरो कर देना। तो बेसिकली एटेन्यूएशन और एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन होता है किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। ये एम्पलीफिकेशन टर्म हम जो है ट्रांजिस्टर जब पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, यानी कि हम देखेंगे हाउ कैन वी एम्पलीफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। तो एटेन्यूएशन इज बेसिकली डिक्रीमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। तो बेसिकली इस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बिल्कुल जीरो कर देगा, ऑलमोस्ट जीरो कर देगा। इसी तरीके से इस सिग्नल को, बट इस सिग्नल को वो पास होने देगा फिल्टर। तो ये एक तरीके का क्या हुआ, फिल्टर हुआ, जो कि आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को मैं फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर रहा है। यानी हमारा फिल्टर क्या हुआ, filters are the frequency selective network। So here we are selecting the frequency। यहाँ पे हमने एक की बात करी है, एक से ज्यादा भी अगर चाहिए होगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें 50, 60 दोनों चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फिल्टर को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि ये 50 और 60 को पास करे और 70 को एटेन्यूएट कर दे। यानी फिर हम इसको इस तरीके से डिजाइन कर देंगे कि 60 से ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी को ये एटेन्यूएट करे। ठीक है, तो ये क्या फिल्टर्स होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे दिस इज द बेसिक्स ऑफ द फिल्टर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी ऑलवेज। ओके, मेल करिए कोई भी इश्यू है। देन राइट नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगेन आई एम जस्ट टेलिंग ऑल द समरी ऑफ दिस थिंग, दैट फिल्टर्स आर फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क। हम फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करते हैं। इनपुट में जनरली हम जो सिग्नल्स होते हैं उनमें नॉइज होते हैं, नॉइज और क्या कहते हैं सम signals which are unwanted, जो because of interference, because of electromagnetic interference और बहुत सारे reasons हैं जिनकी वजह से सराउंडिंग में कोई मशीन चल रही है, जिनकी वजह से जो सप्लाई है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और तो उन सब चीजों को फिल्टर आउट करने के लिए जिन नेटवर्क्स का हम यूज करते हैं उनको हम फिल्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फिल्टर। अब फिल्टर दो तरीके के होते हैं बेसिकली। दिस इज द एनालॉग फिल्टर वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनालॉग फिल्टर। एक्चुअली एनालॉग फिल्टर भी होते हैं, डिजिटल फिल्टर भी होते हैं। तो ये डिजिटल फिल्टर्स क्या होते हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये फिल्टर होते हैं जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड हैं। तो डिजिटल फिल्टर्स हैं आपका, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्या होते हैं। बट एनालॉग फिल्टर्स भी दो टाइप, दो, ये तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉग फिल्टर्स और डिजिटल फिल्टर्स। तो एनालॉग डिजिटल फिल्टर्स के यूज अलग हैं, तो वो एक्चुअली हायर क्लासेस में और हायर एजुकेशन में आता है। एंड फॉर द डिप्लोमा करिकुलम वी विल कन्फाइंड अवरसेल्फ विद द एनालॉग फिल्टर्स। ठीक है, तो डिजिटल फिल्टर्स को मैं मिटा देता हूँ। एनालॉग फिल्टर्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनालॉग फिल्टर। और एनालॉग और डिजिटल के बीच में डिफरेंस मैंने शायद आपको बताया होगा, और नहीं बताया होगा तो अगले सब्जेक्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसमें सबसे पहला लेक्चर इसी पे डिस्कस होता है कि व्हाट इज एनालॉग एंड व्हाट इज डिजिटल। तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनालॉग फिल्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके एक्टिव फिल्टर्स
और एक होते हैं आपके पैसिव फिल्टर्स। तो बेसिकली ये एक्टिव और पैसिव का जो क्लासिफिकेशन डिवाइसेस को लेके है, सेम काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें। तो पैसिव फिल्टर एंड हियर इन दिस सब्जेक्ट DW301, DW301 में हम अपने आप को कन्फाइंड करेंगे खाली पैसिव फिल्टर्स की तरफ। कि पैसिव फिल्टर्स क्या होते हैं, जो कि पैसिव कंपोनेंट से बनते हैं। हाँ, अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स कौन कौन से हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिजाइन द पैसिव फिल्टर्स। और एक्टिव फिल्टर्स होते हैं जो कि एक्टिव कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, यानी कि जिनके अंदर ऑलरेडी एक पावर सप्लाई, यानी कि इनपुट और आउट। पैसिव फिल्टर्स में क्या है बेसिकली कि यहाँ पे फिल्टर की अपनी कोई पावर सप्लाई नहीं होगी, यानी फिल्टर विल बी जस्ट नेटवर्क comprising of the resistor, comprising the combination of resistor, inductor और कैपेसिटर। बस उसमें वो तीन कंपोनेंट होंगे, कोई यहाँ पे अपनी सप्लाई नहीं होगी। अगर हम मोटे मोटे तरीके से समझना चाहें इसको, तो फिल्टर में अपनी कोई सप्लाई नहीं होगी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आप इनपुट की सप्लाई देंगे, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगी, बीच में आपको कोई सप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है। बट इन एक्टिव फिल्टर्स में हम एक्टिव डिवाइसेस यूज करते हैं। एक्टिव डिवाइसेस आर लाइक ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इन सब डिवाइसेस को पहले कॉन्फ़िगर करना होता है। ट्रांजिस्टर, ऑप एम्प, तो ये सब डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर अभी हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक ही हमारा ट्रांजिस्टर। सो देन वी विल try to understand what is the active component in the transistor and why it is required to configure the transistor। तो ट्रांजिस्टर को कॉन्फ़िगर क्यों करना पड़ता है हमें उसको यूज करने से पहले, फिर हम उसको सप्लाई देते हैं। यानी कि एक्टिव कंपोनेंट्स में यहाँ पे भी कुछ बैटरी लगी होगी, कोई बैटरी या कुछ इसका डीसी सोर्स का यूज करेंगे। तो वो फिल्टर्स अलग होते हैं, वो फिल्टर्स आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं DW509 सब्जेक्ट में। ठीक है, तो वो अभी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। Here we are talking about the passive filters only, and passive filters are made of three components। तीन तरीके के components होते हैं इनमें, and those components are resistor, we use resistor, L, inductor and capacitor। So here you can see there are three kinds of components: resistor, inductor and capacitor. With the help of these three basic passive components, we can design all kinds of filters. Okay, so basically here you can see, and here you can get the intuition about this filter. So here this filter passes only low frequencies, 50 hertz, and it attenuates all the high frequencies. So the response of this filter will be like this. It means it passes, it has a high gain for the low frequencies, and very low gain and a very low high output for the low frequencies, and very low output for the high frequencies. So this is a kind of low pass filter. Okay. So I will give you the classification of these filters. Now, there are basically four kinds of filter: low pass, high pass, and band stop filter. And now we will try to understand how can we design the filter. So there, with the help of resistor, inductor, and capacitor. And here we are talking, strictly speaking, here we are talking about only the passive filters. So the passive filters are made of three basic components: resistor, inductors, and capacitor. Okay. So in filters, the input comprises many frequencies, and according to the selectivity of the filter, or you can say that according to the frequency response of the filter decides which frequency will pass and which frequency will attenuate. So this is all about the basics of the filter. And now we will start the designing of the filters, designing of the passive filters with the help of resistor, inductor, and capacitor. Okay, so let us start the
designing of passive filters. So before starting the designing, let me give you the classification of basic filters. Basic passive filter. There are four kinds of filter. One is the low pass filter. Another one is the high pass filter. Then the band pass filter and the band reject filter or band stop filter. So basically, there are these four kinds of filters. So low pass filter, but by the meaning, by the name, we can already understand the meaning. It passes only the low frequencies. तो लो पास फिल्टर खाली लो फ्रीक्वेंसीज को पास करता है. अब कितनी लो फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, ये उसमें एक थ्रेशोल्ड हम डिसाइड करते हैं. तो अगर हम लो पास फिल्टर का रेस्पॉन्स देखें तो लो पास फिल्टर रेस्पॉन्स इज लाइक दिस. तो यानी कि यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी होगी जिसके बाद यानी कि इससे कम जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी इसको वो पास करेगा यहाँ से यहाँ तक. मान लीजिए ये कोई फ्रीक्वेंसी है, इसकी एक हायर फ्रीक्वेंसी कट ऑफ होती है, इससे हम ऊपर ये पास नहीं करेगा. ठीक है. इसके बाद होता है हाई पास फिल्टर. तो हाई पास फिल्टर बेसिकली हायर फ्रीक्वेंसीज को पास करता है. तो इसमें कट ऑफ होती है लोअर फ्रीक्वेंसी की, यानी इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर का ये पास करेगा और बाकी की फ्रीक्वेंसी को ये एटेन्यूएट करेगा. तो दिस इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिल्टर. एंड बैंड पास फिल्टर क्या होता है? बेसिकली बैंड पास फिल्टर आपका एक बैंड में पास करता है, यानी कि दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में, एक लोअर फ्रीक्वेंसी और एक हायर फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो पास करेगा. यानी कि अगर ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है और ये आपका फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है. आउटपुट ओवर इनपुट, यानी आउटपुट ओवर इनपुट अगर हम किसी चीज में कर देते हैं तो हम उसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं. यानी एक चीज समझ लीजिए, बेसिकली मैथमेटिकल टर्म है. अगर कोई सर्किट है, इसमें ये आउटपुट है और ये इनपुट है, तो अगर हम इसको आउटपुट ओवर इनपुट कर देते हैं जनरली, अगर वो सर्किट एम्पलीफायर नहीं है, ठीक है, अगर वो सर्किट एम्पलीफायर नहीं है तब आपका हमेशा ये वन के मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी वी नॉट ओवर वी वन की वन हो सकती है. यानी कोई भी सर्किट है, अगर आपने कुछ इनपुट दिया तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा. मान लीजिए फिल्टर सर्किट है, कोई भी है, अगर वो सर्किट एम्पलीफायर नहीं है तो डेफिनेटली, अगर एम्पलीफायर होगा तो डेफिनेटली एम्पलीफायर का मीनिंग क्या है कि इनपुट को कुछ एम्पलीफाई कर देगा. यानी वी नॉट ओवर वी आई का जो रेशियो होगा वो कुछ कांस्टेंट होगा. यहाँ पे अगर हम वी नॉट ओवर वी आई की वैल्यू निकालें तो ये मैक्सिमम वैल्यू वन होती है. ठीक है. क्यों वन होगी? बिकॉज जो जितनी एनर्जी आप इनपुट में दे रहे हो, कोई भी सिग्नल है उसकी एनर्जी की फॉर्म में जाता है. जनरली देखिए कोई भी एनर्जी किस तरीके से होगी, आप यहाँ पर वी आई देंगे, इससे कुछ करंट बहेगा आई यहाँ पे, तो वी आई इंटू आई, जो एनर्जी हमने इनपुट इनपुट पोर्ट पे दी और आउटपुट में हमें कुछ एनर्जी मिलेगी. मान लीजिए आई नॉट आई आई, ये एनर्जी. तो ऑब्वियस सी बात है, सर्किट के अंदर अगर जो कुछ एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे तो कंपोनेंट्स एनर्जी को डिसिपिएट ही करेंगे, यानी कि एनर्जी ज्यादा नहीं निकल के आ सकती. तो फिर एम्पलीफिकेशन कैसे होता है, ये भी सोचने वाली बात है. वो हम डिस्कस करेंगे इन द ट्रांजिस्टर कि कैसे उसमें एनर्जी, मतलब ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफाई कर देता है. तो सोचने वाली बात ये है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुनिए. whenever we are providing some energy here which is vi into ia form, तो आउटपुट में जो एनर्जी होगी वो या तो इसके बराबर हो सकती है बेस्ट केस सिनेरियो में, बट इससे ज्यादा नहीं हो सकती. बिकॉज सर्किट के कंपोनेंट्स के थ्रू जब हम कोई चीज निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है. आपको पता है कि फॉर एसी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल्स की, बिकॉज फिल्टर्स का तभी सिग्निफिकेंस है ऑल्टरनेटिंग करंट की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आना चाहिए. तो फिर फॉर द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हम इम्पीडेंस मॉडलिंग का यूज करते हैं. आपने ईसीएम में पढ़ा होगा
कि जनरली व्हेन वी आर डीलिंग विद द सर्किट्स which are energized by the sinusoidal source और AC source, तो उनमें हम क्या करते हैं, इम्पीडेंस मॉडलिंग कर लेते हैं, यानी इम्पीडेंस मॉडलिंग का यूज करते हैं। इम्पीडेंस मॉडलिंग समझते हैं आप लोग, आप जानते हैं, बस ये नाम थोड़ा आपको अलग लग रहा है। तो इम्पीडेंस मॉडलिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो आपका कैपेसिटर है उसको जो है जी सी करके उसको हम यूज कर लेते हैं 1/j⍵c, यानी कैपेसिटर का ये हो जाता है आपका इम्पीडेंस, और आपका इंडक्टर उसका इम्पीडेंस क्या हो जाता है j⍵l। ठीक है, तो ये इम्पीडेंस मॉडलिंग के लिए हम यूज करते हैं। और उसके बाद जब हमें इम्पीडेंस मिल गया यानी कि रजिस्टर की तरह हो गया, फिर हम जो नॉर्मल रजिस्टिव एनालिसिस है उसको यूज कर सकते हैं सर्किट पे। थेवेनिन, नॉर्टन, ऑल द थ्योरम्स आर एप्लीकेबल, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो